Hello students, this is our 12th lecture and in this lecture we will see what are the types of constructor and how it works. First of all, we will have a quick review on what is constructor that we have already covered into the previous session, but still we have a quick definition and all. Then what are the types of constructor that we will see each one in detail. First one is default constructor, second one is parameterized constructor, and third one is copy constructor. So what is constructor? Constructor is basically used to initialize the objects of the class, and whatever the data members of class are having, that data member must have a initial value. And जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब उसको कुछ बेसिक वैल्यू असाइन करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है. तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर we can do this. That means a constructor is a special member function whose task is to initialize the objects of its class. It is a special because its name is the same as the class name, which we have already covered in the last session. I'll show you the demo. There is a class A, and within that class A there is a function A with a name A, and there is no return type of this function, and the function name is same as the class name. Okay, so this is known as a constructor of this class. The constructor is invoked whenever an object of its associated class is created. When constructor will be called? Whenever the object of that class is going to create, at that moment the constructor will be called. It is called constructor because it constructs the values of data members of the class. Okay, means it initializes the value of data members. It assigns the value to the data member. That is why this is known as constructor. While defining a constructor, you must remember that the name of the constructor will be the same as the name of the class. That I have already said, that constructor name must be the name of the class, and constructor will never have a return type. That means constructor do not have a return type. तो constructor का जो नाम है, यानी क्लास का नाम जो है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, और उसके आगे कुछ भी रिटर्न टाइप लिखी नहीं जाती है. ओके, constructors can be defined either inside the class definition or outside the class definition using the class name and scope resolution operator. तो वो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है कि आउटसाइड दी क्लास अगर कंस्ट्रक्टर में कुछ स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखते हैं. तो कंस्ट्रक्टर के आगे क्लास के नाम लिखना है और डबल कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है. और जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या किया है, कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन डेफिनेशन है वो हमने क्लास के अंदर ही लिखा है. ठीक है, so that is known as inside the class definition, and जो bottom में example दिया है that is known as the outside the class definition. Now constructors are basically divided into three types. First one is default constructor, second one is parameterized constructor, and third one is copy constructor. Now we will see each one in detail. Now here I have created two classes, class A, class B. In class A, X is a public, and another class A is having I. Okay. A default constructor is a constructor which does not take any argument. That means कंस्ट्रक्टर जो है उसमें अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना पड़ रहा है, that means that constructor is known as default constructor. It has no parameters. Here is the syntax: class name और उसके बाद जो ब्रैकेट्स है वो एम्प्टी रहेंगे, उसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं आएगा. अगर पैरामीटर आता है तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो सी द एग्जांपल इन बोथ द एग्जांपल व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन. जो बेसिक कंस्ट्रक्टर जो क्या है उसमें जो हमने एग्जांपल देखा था, दैट इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, so here is the same example which we are going to repeat it. कंस्ट्रक्टर डेमो, उसके दो पैरामीटर, दो डेटा मेंबर है पब्लिक, एक इंटीजर टाइप का नम और दूसरा कैरेक्टर ch. अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है. नम इज इक्वल टू 100 एंड ch इज इक्वल टू 8.
उसके बाद क्या किया है, कंस्ट्रक्टर डेमो ओबीजे, ओबीजे इज ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर डेमो। और उसके बाद ओबीजे डॉट नम और ओबीजे डॉट सी एच करके सी आउट से दोनों की वैल्यूज प्रिंट की है। मैंने जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब नहीं बोला है कि कौन सी वैल्यू नम और सी एच की रहने वाली है। दैट विल बी सेल्फ अंडरस्टूड कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओबीजे जब भी क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर के स्टेटमेंट पे चला जाएगा और वहां से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। In this case, as soon as the object is created, the constructor is called, which initializes its data members. A default constructor is so important for initialization of object members that even if we do not define a constructor explicitly, अगर constructor कॉल करना है ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट के बाद हम राउंड ब्रैकेट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, फिर भी वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा इन द फॉर्म ऑफ implicit calling of the constructor। इवन एक्सप्लिसिटली भी आपको अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो वो भी पॉसिबल, लेकिन कैसे होगा वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर वही सेम प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे वैल्यू नम की 10 दी है और सी एच की वैल्यू b दिया है। कंपाइल, एग्जीक्यूट, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज दिखाई दे रही है, नम की 10 और सी एच की b। ओके, तो ये जब भी क्रिएट होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो अल्टीमेटली ओबीजे क्रिएट होने के साथ साथ ये कंस्ट्रक्टर डेमो का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कहीं पे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ default constructor। Okay, the next one is parameterized constructor। यानी पैरामीटराइज यानी कंस्ट्रक्टर आप जो भी बनाते हो उसको आप बाहर से कुछ वैल्यू देते हो और जो भी वैल्यू आती है वो डेटा मेंबर को असाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक इंटीजर क्लास बनाया है, उसके दो डेटा मेंबर है इंटीजर टाइप के m एंड n, और पब्लिकली एक वॉइड डिस्प्ले करके मेथड बनाई है जिसके अंदर m एंड n की वैल्यू प्रिंट करी है, ठीक है। These are the constructors with parameters। Now कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। Using this constructor, you can provide different values to data members of different objects by passing the appropriate values as an argument। Okay? यानी इसका मतलब क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, इंटीजर का ऑब्जेक्ट i1, i2, i3 बनाते हो तो तीनों के लिए m एंड n जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो मैं कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट वैल्यूज भेजूंगी। तो क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए m एंड n की वैल्यू अलग अलग रहेगी। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था कि जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके जितने भी डेटा मेंबर्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके सभी डेटा मेंबर्स की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि उसमें स्टैटिक असाइन किया है, हमने बाहर से कुछ नहीं लिया है। The argument can be passed to the constructor by calling the constructor implicitly। implicitly भी कॉल कर सकते हैं और explicitly भी कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इंटीजर का, इंटीजर इन अ ब्रैकेट इंट x इंट y, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्लास के बाद लिखी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास के नाम कॉलन फिर कंस्ट्रक्टर का नाम और दोनों पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या किया है, m इज इक्वल टू एक्स एंड n इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो गया, जो भी x और y की वैल्यू बाहर से आएगी जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इंटीजर क्लास का, तो वो वैल्यू m एंड n को असाइन हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कैसे लिखा जाता है। क्लास का नाम लिखा इंटीजर 1, इंट 1 इज इक्वल टू इंटीजर 0,100। तो अगर इक्वल ऑपरेटर यूज करके वापस से क्लास का नाम लिख के ब्रैकेट में अगर पैरामीटर देते हो, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉल ऑफ द कंस्ट्रक्टर, वेयर एज सेकेंड वन लाइन इज इंटीजर इंट 2 0 एंड 100। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नेम के पीछे ही हमने बोल दिया ब्रैकेट्स में कि दीज आर दी पैरामीटर वैल्यूज। ओके, so here is the example of parameterized constructor। in this example class integer, same data member m and n, public and void display, दोनों की वैल्यू प्रिंट की है। now I have declared one integer constructor with two parameters, integer x and integer y।
उसकी डेफिनेशन दी मैंने कि वो क्लास में क्या होगा, m इज इक्वल टू एक्स और n इज इक्वल टू वाई, दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। नाउ यहाँ पे देखो, मैंने दोनों टाइप से दो ऑब्जेक्ट बनाए इंटीजर क्लास की, int वन int टू, लेकिन दोनों में पैरामीटर वैल्यूज डिफरेंट दी है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट इंटीजर वन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा है, और इंटीजर टू है उसमें हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है एक्सप्लिसिटली इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही int वन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और int वन डॉट डिस्प्ले किया और उसके बाद int टू डिस्प्ले किया, तो वो आउटपुट देखो क्या दे रहा है। पहले int वन के ऑब्जेक्ट में m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टू के लिए m इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जितने भी डेटा मेंबर्स होने वाले सबकी वैल्यूज डिफरेंट अगर असाइन करनी है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल बी यूज्ड। सो आई विल show you the demo. Okay. Here I have defined the different one. Okay. So open para constructor. देखो यहाँ पर, ठीक है, इंटीजर क्लास बनाया, दो डेटा मेंबर m एंड n ऑफ इंटीजर टाइप। कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर किया एक इंटीजर int x int y, गलती से भी int रिटर्न टाइप लिख दिया कंस्ट्रक्टर के आगे, सो दिस विल गिव यू एन एरर। ओके, डिस्प्ले फंक्शन में हमने दोनों की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ये कंस्ट्रक्टर है जो डिफाइन किया कि उसके स्टेटमेंट्स क्या रहे, x का वैल्यू m को असाइन होगा, y का वैल्यू n को असाइन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहला इम्प्लिसिट कॉल, ये है एक्सप्लिसिट कॉल, and then I have printed return 0. Compile this, build this and execute. देखो प्रिंट हुआ वैल्यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन की डिटेल्स एंड ऑब्जेक्ट टू की डिटेल्स है। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना है तो 250 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये इंटीजर ये लिखा ना तो उसका फ्लो ये कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा। ठीक है, सो एग्जीक्यूट, पहले कंपाइल, बिल्ड एंड देन एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पर 250 हो गया वैल्यू। ठीक है, सो दिस वे you can create a parameterized constructor and you can call implicit and explicitly the parameter constructor. Okay, fine. The next topic is copy constructor. Okay, here I have defined one class that is code and उसका एक data member है id. Okay, now copy constructor is to declare and initialize an object from the another object. यहाँ पर हमने क्या किया था, डेटा मेंबर जितने भी है उतने पैरामीटर लिस्ट से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था। ठीक है, लेकिन अब आप इसके अंदर कोई एक क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, the process of initialization through a copy constructor is also known as copy initialization. ठीक है, तो उसको copy initialization भी बोलते हैं और else copy constructor भी बोलते हैं। In C++, a copy constructor may be called in following cases: when we initialize the object with another existing object of a same class for a type. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट S1 नया बना रहे हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस क्रिएट करने के टाइम पे इज इक्वल टू S2 लिख दिया। ठीक है, S1 एंड S2 दोनों स्टूडेंट टाइप के ही है, तो जैसे ही S1 इज इक्वल टू S2 होगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। When the object of the same class type is passed by the value as an argument, यानी कंस्ट्रक्टर में अगर आप
उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करते हो, उस टाइम पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। When the function returns the object of the same class type by value, जब रिटर्न में भी अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न करता है सेम क्लास का ऑब्जेक्ट, तो उसी टाइम पे भी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। To get to this syntax of copy constructor, class name same as जो पैरामीटर पास किया है उसमें क्या लिखा है, उसी क्लास का नाम एम्परसेंड ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट जाएगा, रेगुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम उसी को रेफर कर रहे हैं। टू गेट टू दिस, यहाँ पे कोड करके एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर कोड %x लिखा, ठीक है। तो कोड %x लिखा, यानी ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब भी मैं उसको एज अ पैरामीटर उसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट पास करूंगी तब। ओके, सो id इज इक्वल टू x id, ठीक है। तो जो भी नया ऑब्जेक्ट बनाएगा उसकी आईडी में कौन सी वैल्यू आएगी, x के आईडी में जो भी वैल्यू है वो नए वाले ऑब्जेक्ट के आईडी में आएगी। हियर यू कैन सी दिस कोड इंटीजर आईडी पब्लिक। देखो यहाँ पे क्या बनाया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप इनिशियलाइज 0 करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट इज कोड इंट a, दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, id इज इक्वल टू a, जो भी वैल्यू पास की वो उसमें आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट वन, कोड इन अ ब्रैकेट कोड %x। नाउ दिस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब कॉल होगा, अगर इक्वल ऑपरेटर से असाइन कर रहे हो या फिर उस टाइप का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो, तो उस टाइम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट इज वॉइड डिस्प्ले, इसमें क्या किया है, आईडी की वैल्यू प्रिंट की है। हियर यू कैन सी दिस कोड a इज इक्वल टू 100, तो क्या हुआ, दिस इज द इम्प्लिसिट कॉल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि 100 इज इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है तो उसके हिसाब से वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और a डॉट डिस्प्ले किया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट इज कोड b इन अ ब्रैकेट a, देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, कोड b इन अ ब्रैकेट a, उसका मतलब क्या है कि जब भी b ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कोड का तो उसमें पास किया है a, और a जो है a इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। तो इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो a जो पास हुआ, यहाँ पे कैच किसने किया, %x ने कैच किया, तो a में जो वैल्यू होगी इट इज नथिंग बट x में जो वैल्यू है वही है, x डॉट id क्या होगा, 100 होगा, तो id में क्या आ जाएगा, 100। तो b डॉट id भी जब भी करोगे इट विल ऑल्सो डिस्प्ले दी 100। लुक एट टू द आउटपुट, id ऑफ b इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट इज कोड c इज इक्वल टू a, कोड c इज इक्वल टू a जो है उसके अंदर क्या किया है, हमने c का ऑब्जेक्ट बनाया, c ऑब्जेक्ट बना रहे ऑफ कोड क्लास, ठीक है। क्रिएशन के टाइम पे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज किया, तो ये वाले केस में भी वो क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा, ठीक है। तो a जो है कहाँ जाएगा, कोड %x में जाएगा, तो x क्या रेफर कर रहा है, a का जो वैल्यू है वही रेफर कर रहा है, तो उसी वैल्यू को वो c में डालेगा, c के आईडी में डालेगा, तो सेम इज द आउटपुट। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस कोड d, ठीक है। तो d इज इक्वल टू a एंड सी आउट id ऑफ d इज इक्वल टू d डॉट डिस्प्ले, तो उसी केस में भी वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सो दिस वे वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास बाय असाइनिंग object of the same class using assignment operator. In that case it will call copy constructor. Okay, so I will execute this program. देखो यहाँ पर है पूरा क्लास लिखा है, क्लास कोड id पब्लिक, ठीक है। तो कोड यहाँ पे क्या दिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है जैसे id is equal to 0, so this can be also done. Okay, and this one is parameterized constructor. तो अगर कोई इंटीजर वैल्यू पास करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब भी पैरामीटर
उसी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर पास होता है तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। एंड डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर हमने कॉल करवा दिया, स्टेटमेंट लिखा है जिसमें आईडी प्रिंट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कोड A100 बनाया, ऐसे उसको कॉल किया, दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉल। ये वाले केस में क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसमें भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी अल्टीमेटली हम ए ऑब्जेक्ट है कोड क्लास का, उसको हम बी सी और डी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में असाइन कर रहे हैं और अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसको इनिशियलाइज किससे करते हैं, उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से हम इनिशियलाइज करते हैं। तो इन दैट केस इट विल कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, सो कंपाइल, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। देखो आ गया आउटपुट सबका। ओके, अभी यहां पर देखो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखा एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर भी लिखा। दैट मीन्स व्हाट, यहां पर हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन it will decide which type of constructor will be called, either it is a default or parameterized or copy constructor. Okay, so if you have any questions and doubts, please note it down and we will discuss it while we do meeting. Okay, thank you for watching this video.